السلام علیکم مس۔ السلام علیکم میم۔ السلام علیکم السلام وعلیکم السلام ایوری میم۔ السلام علیکم میم۔ جی وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میم بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، اس کا سبق نمبر 9 سمجھیں گے، ہم اس کو اسٹڈی کریں گے اچھے طریقے سے انشاءاللہ۔ اور آج کی کلاس اس ہفتے کی تیسری کلاس ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کلاس اگلے ہفتے منگل والے دن یعنی ٹیوزڈے کو، تو اس ان دنوں میں آپ نے یہ سارے 9 چیپٹرز جو آج مکمل ہوں گے ان کو دہرانا ہے بہت اچھے سے، کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جیسے ہی اگلے ویک میں آپ کے 11 چیپٹرز مکمل ہو جائیں گے تو پھر 11 چیپٹرز کا ایک چھوٹا سا ایگزام ہوگا آن لائن، جس طرح آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوتا ہے اسی طرح سے آپ کو ایک ہوم ورک کی طرح سے ایک لنک آپ کو بھیجا جائے گا۔ وہ ہوم ورک نہیں ہوگا، ہوم ورک تو آپ بک سے بھی دیکھ کے کر سکتے ہیں، آپ سلائڈ سے بھی دیکھتے ہیں، لیکن اس میں آپ نے پوری ایمانداری سے اس کو زبانی سالو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو بھی دن ہوں گے آپ کے پاس، آپ نے اس میں یہ 9 چیپٹرز بہت اچھے سے دہرانے ہیں تاکہ آپ بہت اچھے سے ایگزامس کو جو ہے وہ اٹیمپٹ کر سکیں، اور ایگزام کے لیے ٹائم بھی لمیٹڈ ہوگا، وہ ٹائم آپ کو پہلے سے بتایا جائے گا، پوری ڈیٹیلز آپ کو گروپ میں سینڈ کر دی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اوکے جی۔ الحمدللہ کل جب ہم نے چیپٹر 8 کو اسٹڈی کیا تھا تو اس میں ہم نے چیپٹر 8 کے اے پارٹ میں نماز کا بہت ہی بہترین حصہ تشہد انڈرسٹینڈ کیا تھا، اور اس میں اس کے تمام لفظوں کے معنی، پھر محاورہ، پورے جملوں کے معنی، پھر ان سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، پھر ہمیں کیسے ان کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے، وہ سب ہم نے سیکھا تھا۔ اور اس کے بعد بی پارٹ میں جو باتیں سیکھی تھی وہ تو آج آپ نے ماشاءاللہ ریسپیکٹڈ سر کے ساتھ دہرا بھی لی ہیں سارے پوائنٹس، تو آپ کو ویسے ہی سمجھ میں آ گیا ہے کہ حروف جر یعنی حروف جو ہیں ان کے بارے میں 4 باتیں تھیں، اور اسماء اشارہ کے چھوٹے چھوٹے ٹیبلز تھے 4 ورڈز کے، مذکر کے لیے بھی جن کے رائٹ ہینڈ سے اشارہ ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے لیفٹ ہینڈ سے، تو یہ ہم نے کل سیکھا تھا، ایسے ہی ہے نا؟ اور الحمدللہ آج ہم جو نماز کا حصہ سیکھنے والے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہے، درود ہے نا؟ درود ابراہیمی ہم ادا کرتے ہیں جس طرح تشہد کے بعد ادا کرتے ہیں، الحمدللہ ہم اسی سیکوینس میں کل تشہد کے بعد آج ہم درود سیکھیں گے۔ اور درود ہوتا کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو دعا ہوتی ہے، ہم جو دعا مانگتے ہیں اور ہمارے لیے یہ بہت آنر ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا مانگے، اس کو درود کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات میں بتا دوں کہ گرامر میں آج جو چیز ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور نئی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آپ نے یہاں موجود رہنا ہے۔ میں ابھی آپ کو اتنا سا بتا دیتی ہوں کہ ہم نے لفظ کی 3 قسمیں پڑھی تھی، اسم، فعل، حرف، جن میں سے ہم نے اسم کے بارے میں بہت کچھ سیکھا، واحد سے جمع بنانی سیکھی، ہم نے مذکر مؤنث کے الفاظ کافی چیزیں سیکھی، اور اس کے بعد ہم نے حرف کے بارے میں بھی سیکھا کہ حروف کیا ہوتے ہیں، پھر حروف کو ہم نے اٹیچ پروناؤن سے جوڑا اور ٹیبل بنائے۔ آج جو ہم گرامر میں سیکھیں گے وہ فعل ہوگا، یعنی اسم اور حرف ہم نے پہلے پڑھے، آج ہم فعل پڑھیں گے۔ تو الحمدللہ اس طرح ہمارا انٹریکشن لفظ کی 3 قسموں کے ساتھ ہو جائے، ہے نا؟ چلیں آگے بڑھتے ہیں ہم، اور ہم جو بات کر رہے ہیں درود جو آج ہم نے سیکھنا ہے، یعنی درود کیا ہوتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا، اس کو درود کہتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس ڈیفینیشن آ گئی ہے، کوئی بھی پوچھے تو آپ اس کو بالکل کلیئر ورڈز میں بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سر ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایفرٹس کی وجہ سے
जब वो दुनिया में तशरीफ लाए और अल्लाह ताला ने उनके पास अपने फरिश्ते को भेजना शुरू किया, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को, और वो सारे मैसेजेस आकर अल्लाह ताला के हमारे नबी तक पहुंचाते थे और उन्हें बताते थे कि आपके आसपास लोग जो कुछ कर रहे हैं उनमें ज्यादा लोग गलत रास्ते पर हैं, वो गलत काम कर रहे हैं, दूसरों पर जुल्म करते हैं, झूठ बोलते हैं, बुरे अमाल करते हैं, अच्छे अमाल वो बिल्कुल नहीं करते, है ना। तो उनको गाइड किया कि ये वाले काम अच्छे हैं, सबको अल्लाह ताला ने बनाया है और अल्लाह ताला को ये लोग मानते नहीं हैं और अल्लाह ताला को भी नहीं मानते और फिर अल्लाह ताला की बात भी नहीं मानते। तो हमारे प्यारे नबी को ये सब मैसेजेस अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से मिले, आपने सीखे, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी किए और आगे लोगों में फैलाए। कितनी मेहनत की, इतने लोगों को इतनी अच्छी बातें और सच्ची बातें बताते थे, लेकिन उनमें से चंद लोग इस्लाम कबूल करते थे, राइट। और अक्सर लोग तो बात ही नहीं मानते थे, चले जाते थे। और उसके बाद भी आपने अपनी एफर्ट जारी रखा। अब लोग इतनी तकलीफ पहुंचाते थे हमारे नबी को कि आप अल्लाह की तरफ क्यों बुला रहे हैं, हमें बस हमारे बुतों की वर्शिप करने दें। लोग इतनी तकलीफ पहुंचाते थे, इतना बुरे तरीके से बिहेव करते थे, अस्तगफिरुल्लाह नाउजुबिल्लाह, हमारे प्यारे नबी के साथ। उसके बावजूद आपने अपनी अपनी अपना सारा वक्त, अपनी सारी एफर्ट्स लगाई और वो दीन फैलाया और उन्हीं एफर्ट्स की वजह से वो दीन पहुंचते पहुंचते हमारी फैमिलीज तक पहुंचा और फिर हम अपनी फैमिलीज में पैदा हुए अल्लाह के करम से और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम मुसलमान हैं। तो ये सारी स्टोरी जो मैंने आपको बताई है, ये ध्यान में लाएं और सोचें कि हमारे नबी का हम पर कितना बड़ा एहसान है ना। इतनी एफर्ट वो करते थे और दिन भर थकन के बावजूद भी वो कोई एफर्ट, कोई मौका जाने नहीं देते थे इस्लाम को फैलाने का, राइट। तो फिर क्या हुआ, आप किसी भी कबीले को जब दावत देते थे तो डेफिनेटली वो एक कबीला वहां से बात निकलती है, फैलती है। जब हम किसी को बताते हैं, कोई दावत देते हैं, दीन की बात बताते हैं, तो वो लोगों तक जाती है ना। इसी तरीके से उस एक इंसान से बात दो लोगों को पता चलती है, दो से चार को पता चलती है, तो इसी तरह फैलते फैलते पूरी दुनिया में दीन फैल गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर हम पर इतना बड़ा एहसान हमारे नबी ने किया है तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, जाहिर है हमें भी तो करना चाहिए कुछ, है ना। दुनिया में तो कोई हम हमारे लिए जरा सा हमें हेल्प आउट करते हैं किसी काम में तो हम उसको इतना थैंक्स कहते हैं और कहते हैं अब आपको कभी जरूरत पड़ी तो हम आपके काम आएंगे, या हम उनको कोई अच्छा सा तोहफा देते हैं कि इन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, या उन्हें इनवाइट करते हैं, खाने पे बुलाते हैं, उन्हें इस तरह से रिस्पेक्ट देते हैं, है ना। लेकिन हम अपने नबी के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ना हम उन्हें दावत दे सकते हैं, खाने पे बुला सकते हैं, ना हम उन्हें तोहफा भेज सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमारे पर, हम सब पर इतना एहसान कर दिया कि हमें खुद बता दिया कि आप क्या करोगे, आप अपने नबी पर दुरूद उछालो, ठीक है। और उस दुरूद के लिए के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो दुआ किया करो, वो जो अंदाज है, वो जो खास दुआ है, उसको दुरूद कहा, है ना। और एक बात आप सब याद रखें कि वैसे तो हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं और कभी हम एक दूसरे को कहते भी है कि मेरे लिए दुआ करना, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी दुआओं की जरूरत नहीं है। हमें तो जरूरत होती है ना एक दूसरे की दुआओं की, क्योंकि वो तो पहले ही अल्लाह ताला के फेवरेट है, अल्लाह के सबसे पसंदीदा नबी हैं, इंसान है ना। तो देखिए, अगर हम उनके लिए दुआ करेंगे तो क्या इससे किसको फायदा होगा, इससे हमें खुद को फायदा होगा, हमारे लिए ऑनर है कि अल्लाह के पसंदीदा बंदे और जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, हम उनके लिए दुआ कर, ठीक है। और उसका रिवॉर्ड भी हमें मिलेगा। पता है आपको, अल्लाह ताला जो है वो क्या करते हैं, जो कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफा दुरूद पढ़कर भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 फरमाते। देखें कितनी बड़ी बात है। तो सिर्फ दुरूद अदा करने के इतने फायदे हैं। आइए हम शुरू करते हैं, ठीक है, अच्छे से समझते हैं। और दुरूद इब्राहिमी इसको कहा जाता है, हम सब जानते हैं और नमाज में अदा करते हैं। आज इतने अच्छे से समझेंगे कि नबी की मोहब्बत का हक अदा हो जाए। अब के बाद हम जब भी दुरूद पढ़ें, इतना समझ के दिल से दुआ करेंगे नबी की। उसके लिए जरूरी है कि तर्जुमा सीखें, ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ए अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये देखें यहाँ पर आला एक अलग लफ्ज है और मोहम्मद अलग है, इकट्ठा लिखा हुआ है लेकिन ये अलग लफ्ज है। इसी तरह वा, अला और आली, ये 3 लफ्ज है, ठीक है। तो आप इसको याद रखना है। अब देखिए, अल्लाहुम्मा, जैसे हम जब भी कोई दुआ करते हैं तो हम अल्लाह को पुकारते हैं, ए अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर। तो अरबी के खूबसूरत अल्फाज जो है उनमें कहा जाता है अल्लाहुम्मा। जैसे हम कहते हैं ए अल्लाह,
कहा जाता है अल्लाहुम्मा, राइट। और उसके बाद क्या है, सल्ली, रहमत भेज। तो हम अपने प्यारे नबी के लिए दुआ कर रहे हैं, रहमत भेज। सल्ली का मतलब है रहमत भेज। और आप ये लफ्ज जो है तू रहमत भेज, जाहिर है अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ कर रहे हैं। ये हमने कल भी इस चीज को डिस्कस किया था ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, कि किसी भी हर्फ के साथ किसी भी फेल के साथ, लफ्ज के साथ अगर कोई हर्फ तब्दील हो जाए तो ऐसा भी होता है कि उस फेल का मानी बदल जाता है। और ये मिसाल भी हमने पढ़ी थी, जैसे सल्ली, सल्ली के लफ्ज के साथ अगर लाम ज़ेर ली आ जाए तो इसका मतलब बन जाता है नमाज पढ़ना। और अगर सल्ली के साथ आला आ जाए, हर्फ आ जाए आला, तो इसका मतलब होता है दुरूद भेजना। अब यहाँ देखें गौर से, सल्ली के बाद आ रहा है आला, तो इसका मतलब है दुरूद भेजना या रहमत भेजना नबी के लिए। इसका मतलब नमाज नहीं होता। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अला मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अला का लफ्ज हम पहले पढ़ चुके हैं, ये भी हर्फ है, इसका मतलब है पर, जिसका टेबल भी हमने पढ़ा था अलैहि, अलैहिम, राइट, ओके। और अस्सलामु अलैकुम, इस मिसाल से आप इसको याद रख सकते हैं। अगर आपको अला भूल जाए तो याद रखें अस्सलामु अलैकुम, ये जो अलैहि है ना, ये असल में आला है, सलाम हो तुम सब पर। तो इस तरह आपको ये याद रहेगा। व अला आली, वा का मतलब और, अला का मतलब पर, जो भी हमने पढ़ा है। आल का मतलब क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं अभी। आल के अंदर ना दो चीजें आ जाती हैं, आपने ये बात भूलनी नहीं है। खानदान वाले यानी फैमिली के लोग, और इत्तबा करने वाले। इत्तबा करने का क्या मतलब है, जरा चैट बॉक्स में बताएं मुझे, क्या मतलब है इत्तबा? क्योंकि ये लफ्ज हम आम इस्तेमाल शायद ज्यादा नहीं करते, हम बहुत ही सादा वाली उर्दू बोलते हैं, मुश्किल वाली बोलते नहीं है। जरा मुझे चैट बॉक्स में बताएं इत्तबा करने का क्या मतलब है, इत्तबा करने वाले कौन होंगे जी? स्टार्ट करने वाले वाले नहीं, नो। मुझे डायरेक्ट मैसेजेस क्यों आ रहे हैं, आप लोग एवरीवन में भेजें। ट्रस्ट करने वाले कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं पता नहीं, कुछ कह रहे हैं फॉलोअर्स। नजला ने सबसे पहले बताया है फॉलोअर्स, माशाल्लाह। तो इत्तबा करने वाले कौन होते हैं? इत्तबा करने वाले होते हैं जो कि उसी रास्ते पर चलते हैं, यानी नबी के फॉलोअर्स। अब वो जो भी होंगे वो आल में आ जाएंगे। तो ये दो मीनिंग है आल। और एक बात मैं आपको और बताती हूँ, अक्सर हम कुछ लोग या हम लोग ये समझ जाते हैं कि शायद आल और अहल एक ही लफ्ज है। अहल का लफ्ज होता है, हम कहते हैं अहले खाना उर्दू में भी, ये सिर्फ खानदान वालों के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि आल के अंदर खानदान वाले भी हैं और फॉलो करने वाले, जो उनके रास्ते पर चलने वाले हैं वो भी। ठीक है, ओके। तो हमने क्या दुआ की है, सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद, ए अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, यानी उनके फॉलोअर्स पर भी, उनकी फैमिली पर। अब पता ये होना चाहिए कि सल्ली है क्या, रहमत भेजना क्या है। तो रहमत क्या है, जैसे हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि उन पर अपनी रहमतों की बारिश कर, इतनी रहमतें उन पर कर, और क्या दुआ कर रहे हैं, उनके साथ उन पर मेहरबान हो जा, उनका नाम बुलंद कर, उनके दर्जात बुलंद कर। इतनी दुआएं जो हैं वो सल्ली के अंदर, रहमत के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, और आल के दो मानी है, वो तो अभी हमने समझ लिया, आपकी आपकी फैमिली और आपके इत्तबा करने वाले, तो ये आपने बिल्कुल भूलना नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस भी होमवर्क में और क्विज में, जो आपका ऑनलाइन असेसमेंट होगी उसमें आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम अगर, जाहिर है फैमिली वाले हम नहीं है ना, लेकिन अगर हम उनके फॉलोअर्स बन जाएं तो कितनी अच्छी बात है कि जब भी कोई, इतने लोग जो दुनिया में नमाज अदा करते हैं, वो जब भी आल कहेंगे ना कि अल्लाह नबी की आल पे भी अपनी रहमत भेज, तो उसमें वो समझो हमारे लिए भी दुआ कर रहे हो। तो इसलिए हमें जाहिर है नबी का फॉलोअर तो बनना ही है, बीइंग मुस्लिम, है ना, तो हमें ये फायदा भी मिलेगा उससे। ठीक है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर इतने एहसानात किए हैं, हम उन्हें कोई बदला नहीं दे सकते ना। तो यहाँ पर देखिए हम रहमत की उनके लिए दुआ करते हैं। इंशाल्लाह इसी तरह आप पूरे दिल से, दुरूद तो हमें पहले से आता है अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत करना, लेकिन अब हम समझ कर दिल से पूरी मोहब्बत से नबी के लिए दुआ किया करेंगे, नमाज में भी और नमाज के अलावा भी, जब भी हम दुरूद अदा करते हैं। और इवेलुएट करें, क्या हमने कभी सोचा भी है कि हम पर इतना बड़ा एहसान जो हमारे नबी ने किया, हमने अब तक पास्ट में नबी के लिए क्या किया? क्या हम पहले भी नबी के लिए दुआ करते हैं, दुरूद पढ़ते हैं दिल से? फिर अपने फ्यूचर का प्लान बनाए कि इंशाल्लाह हम अपनी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बना लेंगे इसको, और दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बताएंगे। अच्छा, हमने पढ़ा अभी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कमा सल्लैता
अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम, यानी हमने पहले कहा ए अल्लाह रहमत भेज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अब हम क्या कह रहे हैं, जैसे तूने रहमत भेजी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और आल पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अब ये क्या बात है, हम इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये देखें, अला और इब्राहीम ये 2 लफ्ज हैं, व अला आली ये 3 लफ्ज। ठीक है, देखें कमा का लफ्ज जो है ना, ये आई फील के अभी तक आपने शायद नहीं पढ़ा, ये नया है। ठीक है, कमा और का, हो सकता है आपके ज़हन में आ रहा हो कि का तो हमने पहले पढ़ा हुआ है, राइट। किसी के ज़हन में है का लफ्ज हमने जो पढ़ा था पिछले दिनों में, ग्रामर में टेबल में प्रैक्टिस भी किया, उसका मतलब क्या होता है? अगर पता है तो जरा बताएं जी। कोई बताएगा? का लफ्ज हमने टेबल में पढ़ा है, इसका इशारा ये था, तो क्या मतलब है इसका? का, जैसे हम कहते हैं रब्बू का। माशाल्लाह फातिमा वकास ने पहले बताया है, तुम्हारा, आपका, फाइन, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बात है कि आप एक्टिवली जवाब देते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो है ना, ये वो वाला का नहीं है। तो देखिए वो तो आखिर में आता है, रब्बू का तुम्हारा रब, ठीक है, लका तुम्हारे लिए, दीनु का तुम्हारा दीन, किताबों का तुम्हारी किताब। यहाँ पर देखिए वहां पे का आखिर में आ रहा है, यहाँ का शुरू में आ रहा है ना। तो इस तरह कुरान में कई जगहों पे का आ सकता है, कई जगहों पे कमा आ सकता है। दोनों के मानी, जब वो शुरू में का आए या पूरा कमा हो, उसका मतलब होता है जैसे। जैसे आप किसी की मिसाल देते हो ना कि वो तो बहुत ही ब्रेव है, शेर जैसा, हम कहते हैं ना, तो कमा भी इस तरह के मानों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हम अपने नबी के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह तुम हमारे नबी पर उस तरह की रहमत भेज और उनकी आल पर जैसे तूने किन पर भेजी। अब आगे इस बारे में हम पढ़ते हैं। सल्लैता, भेजी रहमत तूने। अब देखें यहाँ भी सल्ली के साथ ली का मतलब होता है नमाज पढ़ना, और सल्ली अला का मतलब होता है रहमत भेजना। तो सल्लैता के बाद अला है, मतलब हम यहाँ भी इसका मतलब रहमत भेजना ही कहेंगे। ठीक है, अला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, अला का मतलब पर होता है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन है? कौन है इब्राहिम अलैहिस्सलाम? चैट बॉक्स में बताएं जरा मुझे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन है? जी, मैं देखती हूँ जरा चैट बॉक्स में कौन सबसे पहले रिप्लाई करेगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में आप क्या जानते हैं। द प्रॉफिट ताहा अजीज ने पहले बताया है, और माशाल्लाह बहुत सारे लोग बता रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके जी, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में हमें भी मजीद कुछ जानेंगे भी, ऑलरेडी जानते भी हैं। व अला आली इब्राहिम, वा और अला पर, ये हर्फ है, आली आल, आल के बारे में हमने दोनों मानी पढ़ ली हैं ऑलरेडी। अच्छा, यहाँ हम देखते हैं ये बात। अब आप भी सोच रहे होंगे कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के सबसे प्यारे नबी हैं, आखिरी नबी हैं, इस्लाम जो है वो उनका दीन है, जो कि फाइनल रिलीजन है अल्लाह का, है ना। तो फिर उनके लिए हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसी रहमत क्यों मांग रहे हैं? तो यहाँ देखिए आपको ये बात समझाई गई है। एक तो मानी इसका ये हो सकता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसा इमाम बनाया था, इस तरह का मुकाम दिया कि दुनिया में जितने भी इस वक्त मुसलमान हैं, जितने भी क्रिश्चियंस हैं, जितने भी ज्यूज हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं, वो सब उनको नबी मानते हैं। जबकि वो अपनी कम समझी में, ना समझी में, कम फहमी में, कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को तो हम रिस्पेक्ट करते हैं नबी की तरह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं करते, गलत बात है। या वो मूसा अलैहिस्सलाम की बात करते हैं लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं करते, राइट। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसी इमामत दी है कि मुसलमान, ईसाई और यहूदी सब उनको इक्वली नबी मानते हैं, इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं एक नबी के तौर पर। ठीक है, तो इस वजह से हम ये दुआ कर रहे हैं कि ए अल्लाह हमारे प्यारे नबी को भी तू इस तरह की कबूलियत हमारी दुआ की तू कबूल कर ले, इसको कबूल फरमा ले कि जमीन पर रहने वाले सारे लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नबी माने जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को माने। ठीक है, तो ये मतलब है दरअसल यहाँ पर। और दूसरा मानी ये भी है कि ए अल्लाह आप अता करने वाले हैं, इससे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अता किया है, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता करें। और ये तो हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वैसे सारे प्रॉफिट्स के सरदार, है ना, ये बात तो हमें पहले से पता है, राइट। तो हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मैसेजेस उन्होंने हमें दिए हैं इस्लाम के, उनको फैलाने की हमें तौफीक अता फरमा, ताकि हम आपके फॉलोअर्स में से हो जाएं। क्योंकि नबी का काम क्या था? नबी तो अल्लाह के दीन को फैलाते थे। अब हम अगर अल्लाह के दीन को, जैसे मैं आपको, मुझे मेरे टीचर्स ने सिखाया दीन की कुछ चीजें,
अच्छी अच्छी चीजें, नमाज के बारे में, कुरान के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। इसी तरह अगर आप सीख के दूसरों को बताएं तो ये नबी की सुन्नत है ना, क्योंकि नबी ने तो पूरी लाइफ में ये सबसे बेहतरीन काम किया है ना, कि वो अल्लाह के दीन को आगे फैलाते थे। तो अगर हम भी ऐसा करेंगे तो हम भी नबी के फॉलोअर्स बन जाएंगे, बहुत स्पेशल लोगों में हो जाएंगे हम, इंशाल्लाह अल्लाह के पसंदीदा लोगों में हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने इंशाल्लाह इसको दुआ, इवेल्युएशन, प्लान और दूसरों को स्प्रेड करने के साथ साथ इस अमल को जारी रखना है। इन्नका हमीदुम मजीद, तो दुरूद का जो पहला हिस्सा है उसके आखिरी कलिमात आ गए हैं। बेशक तू, अल्लाह ताला से हम दुआ कर रहे हैं तो अल्लाह ताला को कह रहे हैं बेशक तू तारीफ के काबिल, बुजुर्गी वाला। इन्ना और का, ये दो लफ्ज हैं, ये देखिए आप अलग अलग लिखे हुए हैं। इन्ना का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है पिछले दिनों में, कि आपको याद है, जरा कोशिश करें चैट बॉक्स में बताने की। इन्ना का मतलब याद है किसी को? मैंने आपको बताया था एक इन्ना होता है, एक अन्ना होता है, एक इन होता है, एक अन होता है, 4 लफ्ज बताए थे एक जैसे। किसी को थोड़ा सा कोशिश करें इन्ना का मतलब क्या होता है। जैसे हम कहते हैं इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अब्दुल मोइज बता रहे हैं कि बेशक होता है माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत अच्छे। और ये देखिए अभी हम देख लेते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, बेशक या यकीनन का तू, बेशक तू, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये फरमा रहे हैं। हमीदुन, ये लफ्ज हम्द से निकला है, और हम्द के दो मानी हमने पढ़े हुए हैं, एक तारीफ और दूसरा शुक्र। ठीक है, हम्द तारीफ और शुक्र है, और हम्द के जो काबिल हो उसको हमीद कहते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये एट्रीब्यूटिव नेम है, हमीद, है ना। और मजीद, मजीद क्या है? बुजुर्गी वाला, यानी इसके, उसका जलाल, उसकी अजमत, उसकी बड़ाई, हर चीज में वो कमाल के दर्जे पर है, परफेक्शन सबसे हाईएस्ट है इन सब चीजों में, बुजुर्गी में, तो उसको हम कहेंगे मजीद। तो ये भी अल्लाह ताला का एट्रीब्यूटिव नेम है। अच्छा, ये लफ्ज भी हमारे लिए बहुत नया नहीं है, हम उर्दू से इसको समझ सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, मेरे वालिद माजिद, रिस्पेक्ट से हम कहते हैं, या हम कहते हैं हमारे आबाओ अजदाद, इसका मतलब हमारे पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स, हम अपने बड़ों की बात कर रहे हैं, अपने बड़े बुजुर्गों की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये सारे अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये मजीद भी वहीं से है, यानी सब बुजुर्ग, सीनियर। ठीक है, ओके। तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, यहाँ मैं एक बात आपको बताती हूँ ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि नबी के लिए दुआ मांगने के बाद हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए इतने खूबसूरत तारीफ के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जरा सोचिए, अगर हम बहुत ही भूखे हो, किसी वजह से हमें खाना ना मिला हो, कोई भी वजह हो सकती है, और एक टाइम से भूखे हो और बहुत भूख लगी है और हमें खाना कहीं अवेलेबल नहीं है, और हमें किसी दोस्त के बारे में पता चले, हमारा कोई अच्छा दोस्त तो हमारे लिए किसी बहुत ही स्टैंडर्ड प्लेस से या 5 स्टार होटल से एक पूरा ट्रक भेजे कि मेरे दोस्त भूखा है, उसको खाना चाहिए, तो वो इतना बेस्ट खाना अच्छी क्वालिटी का भिजवा दे, और जो हमारा फेवरेट हो, और वो भी ट्रक भर के बहुत ज्यादा, तो हम कितने उसको कितना थैंक्स बोलेंगे। आप याद करें, जब हम अल्लाह के लिए रोजा रखते हैं तो अफ्तार के टाइम भी हमें भूख लगी होती है, तो अफ्तार हमें कितनी, हम इंतजार में होते हैं हम अच्छे अच्छे से अफ्तार करें। इसी तरह अगर हम बहुत भूखे हों, भूख लगी हो, और हमें कोई फ्रेंड खाना ला दे, तो हम उसको कितना थैंक्स कहेंगे, है ना। ऐसी बात है ना। तो ये एक छोटी सी मिसाल मैंने आपको दी है, लेकिन अल्लाह ताला के लिए तो इस तरह की कोई मिसालें हो ही नहीं सकती ना, वो तो बहुत बेहतरीन मिसालें हैं। अल्लाह ताला के साथ किसी चीज को रिलेट करके मिसाल ही नहीं दी जा सकती। लेकिन आप इस मिसाल से ये समझे, असल में जब हमें सीधा रास्ता पता नहीं होता ना, जन्नत का रास्ता, है ना, कि हम जन्नत में कैसे जाएंगे, और हमें पता ही नहीं होता कि हम किस रास्ते पे चलेंगे तो जन्नत मिलेगी, तो इसका मतलब है वो भूख से भी ज्यादा बुरी कंडीशन में होते हैं हम, यानी हमारी रूह को भूख होती है ना, कि हमें कोई रास्ता बता दे, वरना तो हम मारे जाएंगे, जहन्नुम में चले जाएंगे। ठीक है, तो उस भूख के अंदर समझो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दीन पहुंचाया, जबकि अगर नबी ना पहुंचाते तो हम तो गलत रास्तों पे होते और हम जहन्नुम में चले जाते, नाउजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, है ना। तो इसी तरह से जब इतनी जरूरत में अल्लाह ताला के नबी ने हमारे लिए इतना कुछ किया, तो कैसे किया? अल्लाह की मर्जी से, जाहिर है अल्लाह ताला ने उनको भेजा। इसलिए हम यहाँ पर नबी के लिए दुआ करने के बाद अल्लाह ताला से इस बात का बाकायदा इजहार करें कि अल्लाह, हम जानते हैं ये तेरा एहसान है, ये सारा का सारा एहसान तेरा है, तेरे ही वजह से इतने अच्छे नबी हमें मिले, और उन्होंने हमारे लिए इतनी कुर्बानियां दी, इतना कुछ किया, उनकी इतनी मेहनत है जिसकी वजह से आज हमें सही रास्ता पता चला है, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हम उसी रास्ते पर चलते रहेंगे तो हम कामयाब होंगे।
बहुत अच्छे से हमें सब कुछ मिलेगा इंशाल्लाह, सब कामयाबी, सब तरह की कामयाबियां मिलेंगी इंशाल्लाह। तो इसलिए हम यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ कर रहे हैं कि या अल्लाह, असल तारीफ के काबिल तो आप हैं, ये प्लान तो आपका है, नबी को तो आपने भेजा है सही रास्ता बताकर, और आप ही मजीद हैं बुजुर्गी वाले, है ना। तो यहाँ हम ये दुआ कर रहे हैं। अब यहाँ पर जरा आप सब अपने ज़हन की खिड़कियां खोलें और जरा सोचें। सोचना क्या है जी? ये सोचें कि जब आपको पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम यानी उस्ताद बनाकर भेजे गए, उस्ताद की कितनी वैल्यू है देखिए, है ना, नबी उस्ताद बनाकर भेजे हैं। तो जब हमें ये बात पता है तो फिर क्या हमें उनका शागिर्द नहीं होना चाहिए? जाहिर है होना चाहिए। और शागिर्द क्या होता है? शागिर्द सीखता है बातें अपने मुअल्लिम से, अपने टीचर से, कोई भी स्टूडेंट सीख कर फिर उसको इम्प्लीमेंट करता है ना। तो यही हम करेंगे, क्योंकि जाहिर है आखिरी नबी वही है, दीन उन्हीं का है जो उनको अल्लाह ताला ने दिया, और अब उसी दीन पर चलते हुए ही हम कामयाब हो सकते हैं, कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो चाहे दुनिया से चले गए लेकिन वो हमारे टीचर हैं और हमें हर हाल में उनको फॉलो करना है, उनके शागिर्द बनकर। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये मुकम्मल कर चुके। अच्छा, इंटरेस्टिंगली माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती हूँ, अभी जो हमने दुरूद का पहला हिस्सा पढ़ा है ना, क्या था वो? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, है ना। तो ये दुरूद का एक हिस्सा था। अब जो दूसरा हिस्सा है ना, वो बिल्कुल सेम है, ये बात आप पहले से जानते हैं, सिर्फ उसमें एक लफ्ज बारक, बारिक या बारकता, ये ऐड हुआ है सल्ली और सल्लैता की जगह, बाकी सारा सेम है। तो हम इसको तो बहुत ही जल्दी से अंडरस्टैंड कर लेंगे, हमें एक एक लफ्ज को समझना ही नहीं पड़ेगा। जैसे अल्लाहुम्मा बारिक, ए अल्लाह बरकत अता फरमा। बरकत का लफ्ज हमने कल भी अच्छे से पढ़ा था जब हम अपने नबी के लिए दुआ कर रहे थे तशहुद में बरकत की। आज भी हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत खास लफ्ज है। ए अल्लाह बरकत अता फरमा अल्लाह अला मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, राइट, ये भी हमने पढ़ा है ये लफ्ज भी। व अला आली मोहम्मद, और आल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ठीक है, तो दुरूद के पहले हिस्से में हमने कहा ए अल्लाह उन पर सल्ली अला, यानी उन पे रहमत भेज, और दुरूद के इस दूसरे हिस्से में हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं या अल्लाह उन पर बरकत अता, उन पर बरकत भेज, है ना, ये दुआ करते हैं। तो नबी की कुर्बानियों को याद करें, उन्होंने हमारे लिए इतने दिन रात लगाए, इतनी मुश्किलात, परेशानियां, तकालीफ को फेस किया, बर्दाश्त किया हमारे लिए, उस दीन के काम को छोड़ा नहीं, है ना। तो ये बात ज़हन में लाकर नबी की मोहब्बत, उनका एहतराम, और फिर दिल से बरकत की दुआ, है ना। अब मैं आपको बताती हूँ बरकत का मानी। बरकत का मानी इतना बेहतरीन है जो मैंने कल भी बताया था, आज जरा दोहरा रही हूँ, इसके बाद आपने खुद याद रखना है। जब हम किसी को कहते हैं अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए आपकी लाइफ में, आपके रिस्क में, है ना, आपके दीन में, तो क्या होता है? बरकत का मतलब होता है कि कोई भी खूबी या भलाई या नेमतें, अच्छी चीज अल्लाह आपको अता भी करे और आपके पास वो चीजें हमेशा रहें, और उसमें मुसलसल वो चीजें ज्यादा होती रहें, इजाफा होता रहे। क्या तीन चीजें होंगी बरकत के मानी में? बरकत की दुआ देने का मानी है कि आपको अच्छी चीज मिले अल्लाह की तरफ से, फिर वो आपके पास ही रहे, और उतनी ना रहे बल्कि वो ज्यादा होती रहे। सुभान अल्लाह, इतनी बेस्ट दुआ है ये बरकत की दुआ, जो हम अपने नबी के लिए दुआ कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जब हम मुख्तलिफ दुआएं देते हैं सबको, तो वो असल में बरकत का मानी यही होता है उसमें। ओके, इसी तरह है कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम। कमा का मतलब जैसे, ये हमने अभी पढ़ा है दुरूद के पहले हिस्से में। ठीक है, का या कमा दोनों का मानी है जैसे। बारकता पहले हिस्से में हमने पढ़ा था सल्लैता, ठीक है, तूने रहमत अता की। ठीक है, ये यहाँ पे दुआ कर रहे हैं कि तू रहमत, हाँ, जैसे तूने रहमत अता की। तो यहाँ हम सल्लैता की जगह हम क्या कर रहे हैं? बारकता, जैसे तूने बरकत अता की। ठीक है, ओके। तो ये क्या है? यहाँ पर जरा इस स्लाइड से भी आपको ये लफ्ज क्लियर हो जाए। पहले हिस्से में हम नबी के लिए सल्ली सल्लैता कह रहे हैं, यानी रहमत की दुआ करते हैं। दूसरे हिस्से में बारिक बारकता कह रहे हैं, यानी बरकत की दुआ। ठीक है, और उनकी डेफिनेशन के रहमत क्या होती है, बरकत क्या होती है, वो हमने यहाँ पर लिख दी है, हमने उसको याद रखना है। ठीक है, अला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, अला आली इब्राहिम, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर। ठीक है,
जैसे बरकत अता की तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर। और आखिर में फिर वही अल्लाह सुब्हानहू तआला के बाबरकत नाम तारीफी नबी अल्लाह ताला की तारीफ के लिए हम अदा कर रहे हैं, इन्नका हमीदुल मजीद, बेशक तुम तारीफ के काबिल बजरती वाला। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है दुरूद। पहले हिस्से में हम अल्लाह के नबी के लिए दुआ करें कि अल्लाह उन पर इस तरह की रहमत अता कर जैसी तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी आल को अता की। आल मतलब फैमिली भी होता है, आल का मतलब फॉलोअर्स भी होता है। और दूसरे हिस्से में हम कह रहे हैं अल्लाह वैसी बरकत भी हमारे नबी पर अता कर और उनकी आल पर जैसी बरकत तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी आल को अता की। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पर ये इजाफी दुआ इसलिए लिखा गया है कि आप, जाहिर है ये इस कोर्स में आपको एक एक लफ्ज पे फोकस करके नहीं पढ़ाई जा रही। एक इस कोर्स, ये पहला कोर्स है, बहुत ही आसान, इसमें बहुत ही लिमिटेड आपको चीजें बताई गई है, लेकिन क्योंकि नमाज के साथ हम ये दुआ पढ़ते हैं, इसकी जगह और भी दुआएं पढ़ी जाती हैं। सिर्फ हर जगह पर, अरब के मुख्तलिफ कंट्रीज में हर जगह सिर्फ ये दुआ नहीं पढ़ी जाती, बट हम लोग यही दुआ ज्यादा पढ़ते हैं, तो हम इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं ताकि हम जब भी ये दुआ मांगे अपनी नमाज में तो हमें इसका तर्जुमा आता है। और आप देखें कि कितनी खूबसूरत दुआ है ये, जरा बहुत ही ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताती हूँ। रब्बिजअलनी, रब्बी इजअलनी, ए मेरे रब बना दे मुझे। रब्बी का मतलब है ए मेरे रब, है ना, ये जेर के अंदर समझो छोटी या छुपेगी, तो इसका मतलब है रब्बी। हमने पढ़ा हुआ है ना, रब्बुहु रब्बुहुम, रब्बु का रब्बी, समझो ये वही रब्बी है, ए मेरे रब। इजअल का मतलब होता है बना दे नी मुझे, बस आपने अभी इसको इतना याद करना है। ठीक है, तो हम अपने अल्लाह से दुआ करें, ए मेरे रब बना दे मुझे। मुकीमत सलाती, मुकीमा कायम करने वाला, अस्सलात नमाज, वमिन जुर्रियती, व और मिन से जुर्रिया कहते हैं औलाद को, और या जो है ये जैसे हमने कहा रब्बी, ऐसे रब्बी का मतलब होता है मेरा रब, तो जुर्रियती का मतलब है मेरी औलाद, और मेरी औलाद से भी। तो हम अल्लाह ताला से जब भी हम ये दुआ पढ़ते हैं ना नमाज में, रब्बी जालनी, हम असल में ये कह रहे होते हैं ए मेरे रब मुझे नमाज को कायम करने वाला बना दे, और मेरी औलाद से भी, यानी मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना दे। फिर हम क्या कहते हैं, रब्बना, ए हमारे रब, ये हम पहले से समझ चुके हैं। वाह, और तकब्बल, तू कबूल कर ले, दुआई, मेरी दुआ, जैसे हमने पढ़ा रब्बी मेरा रब, जुर्रियती मेरी औलाद, इसी तरह दुआई मेरी दुआ। ठीक है, तो ए हमारे रब तू मेरी दुआ कबूल कर ले। उसके बाद क्या है, फिर से आ गया रब्बना, ए हमारे रब, हम अपने अल्लाह को इतने प्यार से पुकार रहे हैं बार बार, कभी रब्बी कहते हैं, कभी रब्बना कह रहे हैं। रब्बना, ए हमारे रब, इग़फिर, बख्श दे, ली मुझे, बख्श दे मुझे, यानी मुझे माफ कर दे, मुझे अपनी तरफ से माफी अता कर दे, जो गलतियां हम करते हैं ना उसके लिए। वली वालिदैया, और मेरे वालिदैन को, ठीक है, या मेरे वालिदैन के लिए, वाह और लिए, वालिदैया मेरे वालिदैन। ठीक है, ये जैसे हम कहते हैं वालिदैन, तो इसी तरह वालिदैया, ये उसको शॉर्ट किया गया है। ठीक है, वली वालिदैया और मेरे वालिदैन को। अब यहाँ पर हम अपने अल्लाह से दुआ करें कि हमारे रब मुझे भी बख्श दे और मेरे माँ बाप को भी बख्श दे। सुभान अल्लाह, देखिए हम हर नमाज में ये दुआ करते हैं। उसके बाद क्या है, वलिल मुमिनीना यौमा यकूमुल हिसाब, वलिल मुमिनीना, वा और ली, लिए, मुमिनीन मोमिनों के, और मोमिनों के लिए भी। ठीक है, यानी जो दुआ मैं कर रहा हूँ अल्लाह ये मोमिनों के लिए भी है। यौमा, यौम कहते हैं दिन, जैसे हमने पढ़ा था सूरतुल फातिहा में, मालिक यौमिद्दीन, फैसले के दिन का मालिक है, तो यौम दिन को कहते हैं, यकूम कायम हो, यानी जिस दिन कायम हो। अल हिसाब, हिसाब, हिसाब कायम होने वाले दिन को क्या कहते हैं हम, जरा किसी को पता है तो चैट बॉक्स में बताएं जल्दी से जल्दी से। ये जो कह रहे हैं जिस दिन हिसाब कायम होगा, हिसाब के दिन का क्या मतलब है, कौन सा दिन, जरा मैं देखती हूँ ना आपको समझ में आ रहा है या नहीं। अब्दुल मोई सिद्दीकी सबसे पहले बता रहे हैं कयामत, ईमान भी बता रही हैं, हादी बता रहे हैं, इनाया बता रही हैं, बहुत सारे लोग माशाल्लाह माशाल्लाह। इसका मतलब आप इतनी खूबसूरत दुआ बड़े दिल से सुन रहे हैं। मेरे लिए एज अ टीचर ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि ये दुआ कितनी खूबसूरत है ना। तो आप देखें रोज नमाज के आखिर में हम ये दुआ करते हैं, अगर ये दुआ हमें पता ही नहीं होती तो फिर वो अल्लाह ताला तो सब जानते हैं, लेकिन हमारे अंदर तो कोई फीलिंग ही नहीं होती कि हम क्या मांग रहे हैं। आज हमें पता चल गया हम क्या मांगते हैं, अब हम पूरे दिल से मांगा करेंगे कि ए मेरे रब
मुझे नमाज को कायम करने वाला बना और मेरी औलाद को भी। ए हमारे रब, मेरी दुआ को कबूल कर। ए हमारे रब, मुझे और मेरे वालिदैन को बख्श दे और मोमिनों को भी जिस दिन हिसाब कायम हो। अब हम ये फील करके दुआ मांगेंगे तो हमारी दुआ में कितना असर होगा और अल्लाह ताला को कितना अच्छा लगेगा कि हम पूरी तवज्जो से दुआ मांग रहे हैं, है ना। चले अल्हम्दुलिल्लाह, आज का सबक हमने दुरूद इब्राहिमी और उसके साथ जो दुआ होती है हमने वो भी अंडरस्टैंड कर ली। कितनी खुशी की बात है कि नमाज का इतना 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 बेहतरीन जरूरी हिस्सा हम समझ भी चुके हैं। और अब देखें कि बहुत ही कम कुछ कुछ रह गया है जो नमाज का हिस्सा हमने अभी नहीं समझा, जो हम अगले चैप्टर में कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो पॉकेट बुक से आप लोग दुहराई जरूर किया करें, मैं बार बार आपको कहती हूँ, क्योंकि शॉर्ट टाइम में आपको वर्ड के मीनिंग जल्दी से याद हो जाते हैं। ऐसा करते हैं, जरा यहाँ पर एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं आपसे। तो चैट बॉक्स में मुझे बता दें आप के क्वेश्चन क्या होना चाहिए। मैंने आपको बताया ना, नबी की आल पर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आल पर, आल के दो मानी कौन से मैंने बताए, कौन बताएगा मुझे चैट बॉक्स में। आल के दो मानी, ईमान कह रही है खानदान, सादिया कह रही है औलाद, फैमिली एंड फॉलोअर्स सारा ने बताया, साहब भी बता रहे हैं। फिर डायरेक्ट मैसेजेस आप लोग कोशिश क्या करें कि एवरीवन पे मैसेजेस करें, ठीक है। एनीवेज कोई बात नहीं, आप जिस तरह भी कर रहे हैं मैसेज, लेकिन आप मुझे रिप्लाई कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो आल का के दो मानी कौन से हैं, और फैमिली भी और फॉलोअर्स भी, ठीक है। एक और सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ, हमने अपने नबी के लिए दुरूद के पहले और दूसरे हिस्से में किस चीज की दुआ मांगी, क्या चीज मांगी है कि या अल्लाह मेरे हमारे नबी को ये अता कर। फिर दूसरे हिस्से में हमने दूसरी चीज मांगी है, क्या है भला, क्या आप बता सकते हैं। एक तो रहमत और एक बरकत, माशाल्लाह इतने सारे लोग बता रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपसे इतने खुश होंगे कि आप इतने इतनी दुनिया इतने कामों में बिजी है और आप अल्लाह ताला की किताब समझने में बिजी है। इस टाइम अल्लाह ताला को आपसे, आप पे कितना प्यार आ रहा होगा ना। ये सच्ची बात है कि ये बंदे जिनको मैं हर वक्त सब अदा करता हूँ लेकिन अपने कामों में बिजी रहते हैं, तो अब ये सब मेरी किताब पढ़ रहे हैं और कुरान की बातें समझ भी रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। कितनी अच्छी बात है ना। चलें, ऐसा करते हैं, हम कोई 15-20 सेकेंड्स के लिए ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम ग्रामर की तरफ आएंगे और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सीखेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो हम वापस आ चुके हैं ब्रेक के बाद, और आज मैंने आपको शुरू में बताया था कि आज हम नई चीज, बिल्कुल नई चीज सीखने वाले हैं, ठीक है। तो टाइम जाया किए बगैर हम आगे जाते हैं। और मैंने आपको बताया था लफ्ज की तीन किस्मों में से इस्म और हर्फ हम पढ़ चुके हैं, आज हम फेल पढ़ेंगे। और उसमें भी देखिए तीन खास लफ्ज आपको यहाँ पता चल रहे हैं, फाला, फतह, जाला। बहुत बहुत दिलचस्प है। तो ये गेम के जिस लेवल पर आज हम दाखिल हो रहे हैं ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस लेवल को आपने मिस नहीं करना, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और इसका हिस्सा बनेंगे। टीपीआई के जो रूल्स हैं ये आपके सामने आ रहे हैं। आप में से कौन ये रूल्स मुझे बताएंगे, जरा अपना हैंड रेज कर लें जी। ऐसा करते हैं हम, हादिया अहमद आप अपना माइक ऑन कर लें और ये सारे रूल्स मुझे बता दें, इशारों से बताना है आप। ओके मैम। सोचिए, नहीं, देखिए। नहीं हादिया बेटे, आपने सीक्वेंस रखना है, सुनिए से शुरू करें और इस तरह से चलते जाएं, ठीक है। चल, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और अपने साथियों के साथ मिलके करें। वेरी नाइस। हादिया ने इतने अच्छे से बताया, हादिया को लगता है बहुत अच्छे से इस पॉइंट की समझ आ गई है, उनके बताने के अंदाज से मुझे पता चल गया है, माशाल्लाह। अभी आप हैंड लो कर लें, नए सवाल के लिए आप फिर से हैंड रेज किया करें, ठीक है। बी एक्टिव इन द क्लास, यही बात तो हमें पता चली है टीपीआई से, जो अभी अभी हादिया बता रही थी। सुनिए, देखिए, सोचिए, यानी आपने एक्टिव रहना है, ठीक है। लेजी नहीं होना, फौरन हैंड रेज करना है, फौरन हैंड लो करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता रही थी लफ्ज की तीन किस्में हैं, इसम और हर्फ हम पढ़ चुके हैं। फेल आज पढ़ेंगे। फेल होता क्या है, फेल वो सारे लफ्ज होते हैं जिसमें कोई काम मौजूद, कोई भी काम करना और उसमें जमाने का भी पता चले, ठीक है। तो ये बात हमने ध्यान में रखनी है और हम इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि फेल में अभी हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। और जस्ट लेट मी टर्न ऑन माय वीडियो जी।
फेल जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं वर्ब, राइट। ओके जी, तो ये देखिए जरा आप स्क्रीन पर, आपको कुछ लफ्ज नजर आ रहे हैं ना, अलग अलग उनके हिस्से अलग किए हुए हैं, जैसे फा, आइन, लाम, फा, ता, हा, नून, स्वाद, रा, द्वाद, रा, बा। तो ये देखिए आपको इनमें कॉमन बात पता ये चल रही होगी कि जितने भी लफ्ज लिखे हुए हैं ना, ये सारे इन सब में तीन तीन इनके हिस्से हुए हैं, है ना। इनमें अल्फाबेट्स जो हैं वो सिर्फ तीन तीन है सब में, किसी में दो नहीं है, किसी में चार नहीं है। तो आप ये ध्यान में रखिए कि जो भी फेल के लफ्ज हम पढ़ेंगे ना, उनमें ज्यादातर यही होगा कि आप देखेंगे कि उनमें तीन ही हर्फ हैं, और खासतौर पे इस कोर्स में तो हम तीन वाले ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है जो आपके ज़हन में होनी चाहिए। अच्छा, मैं देख रही हूँ अभी तक उमर, हफ्सा और अरवा ने हैंड लोन नहीं किया, जबकि मैंने आपको याद भी कराया था, तो आप जल्दी से हैंड लोन कर लें। वेरी गुड। ओके, फेल की ना तीन किस्में होती हैं। आज हम फेल पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तीन किस्में कौन सी हैं याद रखें। एक तो होगा माजी, यानी ऐसा फेल जिसमें काम पहले से हो गया है, पूरा हो चुका है, काम मुकम्मल हो चुका है। दूसरी फेल की टाइप है मुजारे। मुजारे का मतलब होता है काम अभी मुकम्मल हुआ नहीं है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ, या तो हो रहा है प्रेजेंट में या फ्यूचर में काम हो, उसको कहते हैं मुजारे। इंग्लिश में इम्परफेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो फेल है ना, तीसरी टाइप, वो है अम्र, राइट। और अम्र के मतलब ऐसा काम है जो आप किसी को कहते हो ना, कुछ कहते हो कि आप ये काम करो या आप ये काम ना करो, किसी को कहते हो, अगर बड़े हो तो हम उनसे रिस्पेक्ट के साथ रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप मेरे लिए ये करते हैं, है ना। मामा पापा से या किसी टीचर से या किसी भी बड़े से बात करनी हो, या हम उनसे रिक्वेस्ट करके कहते हैं ये कर दें, या उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज ये ना करें। इसी तरह अगर कोई छोटे हो हमसे, तो समटाइम हम अच्छे तरीके से उन्हें ऑर्डर करते हैं कि आपने ये काम करना है या आपने ये काम नहीं करना, ठीक है। तो वो सारे जो चीजें होंगी ना जिसमें आप कोई काम करने का कह रहे हैं या काम करने से रोक रहे हैं, वो सारी आती हैं अम्र के अंदर। तो कौन सी तीन टाइप्स हो गई, फेल मादी, फेल मुदारे, फेल अम्र। ये मुदारे में पेश है, इसको ध्यान में रखिए, प्रोनाउंसिएशन सही होनी चाहिए। तो ये तीनों के नाम कौन बता रहा है मुझे, हैंड रेज करें जरा। इन तीनों के नाम कौन बताएगा, मुस्फिरा माइक ऑन करके जल्दी से तीनों के नाम बता दें, फेल की तीनों टाइप। फेल माजी, फेल मुजारे, फेल अम्र। फेल मादी, फेल मुदारे मीम पर पेश है, फेल अम्र। माशाल्लाह, मुस्फिरा में जो है ना वो रीइंफोर्स करवा दिया। आगे चलते हैं, और अब आप हैंड अपने वापस लो कर लें। अब ये देखिए, पहला लफ्ज जो आज हम फेल पढ़ रहे हैं ना, वो खुद फेल ही है, जैसे कि फाअला, उसमें फा आ रहा है, उसमें आइन आ रहा है, उसमें लाम आ रहा है। अब आप बहुत गौर से देखें, फाअला का मीनिंग क्या लिखा हुआ है, उसने किया। फाअला का मतलब आपको पहले से बता दिया है, उसने किया यानी कोई काम किया, काम की बात है ना, कोई तो काम किया होगा, शायद उसने कोई अच्छा काम ही किया होगा। अच्छी चीजें सोचनी चाहिए, जैसे आप कुरान का कोर्स कर रहे हैं, ये भी तो काम है ना। आपने मम्मा के कहने पे कोई उनके हेल्प किया, वो भी काम है। तो फाला उसने किया, तो कोई काम किया। अब हमने करना क्या है, हमने इसका जो टेबल बनाना है ना, फेल मादी का, आज हम फेल मादी का टेबल बनाएंगे। मादी का मतलब उसने काम कर लिया, उसने काम किया, है ना। तो टेबल बनाने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे ना, वो आज बड़े मजे से यहाँ पे बना हुआ है। आप अभी फ्यू सेकेंड्स में याद कर लेंगे मेरे साथ, ताकि इस गेम के अगले लेवल पर चलते चलते आपको आसानी हो। क्या फॉर्मूला है ये देखिए, पहला लफ्ज तो है फाला, उसके बाद आपने एक दो तीन चार पांच, पांच और लफ्ज सीखने हैं, ये टोटल 6 लफ्जों का टेबल बनेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या है, आखिर में देख रहे हैं वाव और अलिफ, यानी ऊ की आवाज आएगी, जैसे बन गया फालू। फिर उसके बाद वाले लफ्ज में ता आएगा, ता, तो आप बन जाएगा फाल ता, फा आइन लाम तो आएगा क्योंकि वो तो लफ्ज में आ रहा है ना। उसके बाद तू आ जाएगा, तू, तो आप कहेंगे फाल तू। फिर आ जाएगा तुम, तो आप बोलेंगे फाल तुम। फिर आ जाएगा ना, तो आप कहेंगे फाल ना। तो अब सारे अच्छे अच्छे बच्चे मेरे साथ दोहरा लें। फाला के बाद, फाला के बाद देखिए इशारे वही हैं जो हमने पहले किए, राइट हैंड से, क्योंकि मुजक्कर के लिए पढ़ रहे हैं, तो राइट हैंड से इशारे राइट साइड पे करेंगे। फाला के बाद फा, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना। अगर हम सिर्फ फॉर्मूला पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे, फाला के बाद ऊ, ता, तू, तुम, ना।
پھر سے پڑھاتی ہوں اور مجھے یقین ہے آپ سب پڑھ رہے ہوں گے. فعلا، او، تا، تو، تم، نا. اب اس طرح سے کون فارمولا پڑھ کے سنائے گا؟ ہینڈ ریز کریں ذرا جلدی سے. پورا لفظ نہیں پڑھنا ہے آپ نے, صرف فارمولا پڑھنا ہے. طاہا عزیز بیٹے مائک آن کریں اپنا. فعلا فارمولا بتائیے. فعلا وا تا واہ نہیں بیٹے, او پڑھیں آپ, او کی آواز ہے. او تا تو تم نا. نائس, ماشاءاللہ, یو آر ویری انٹیلیجنٹ. اتنی سی دیر میں طاہا نے سمجھ بھی لیا اور آپ کو پریکٹس بھی کرا دی. مجھے تو لگتا ہے طاہا بہت جلدی ٹیچر بن کے یہ پڑھا بھی دیں گے دوسروں کو. ماشاءاللہ, بہت ہی اچھی بات ہے. اب ہمیں فارمولا سمجھ آ گیا, اب ہم پورے ٹیبل کو دیکھتے ہیں. یہ آ گیا ہمارا فعلا کا ٹیبل, فعل ماضی. اور ہم نے پہلے بات کر لی ہے کہ فعل ماضی میں سارے کام ہو گئے ہیں پہلے سے, تو ہم یہ نہیں کہیں گے کام ہو رہا ہے, ہم کہیں گے ہو گیا. اس نے کام کر دیا, ان سب نے کیا, آپ نے کیا, میں نے کیا, آپ سب نے کیا, ہم سب نے کیا. جیسے ہم نے ہوا ہم میں پڑھا تھا, وہ سب, آپ, میں, آپ سب, ہم سب. تو یہاں پر ماضی, فعل ماضی کا ٹیبل ہے, تو وہ ہم اس طرح سے پڑھیں گے. اور اس کی پریکٹس تو ابھی ہم نے کر بھی لی ہے نا. اب آپ ذرا انڈر اسٹیمیٹ مت کریں, اسی پیٹرن پر آنے والے لفظ جو ہے نا قرآن میں, وہ پتہ ہے کتنے زیادہ ہیں. غور سے دیکھیں سلائڈ کو, 9000 اسی پیٹرن پر آ رہے ہیں. اب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے اس ٹائم کلاس کو بس چھوڑ کے چلے جانا ہے, یا آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے غور سے سمجھنا ہے, تاکہ آپ کو تھوڑے سے ٹائم میں, تھوڑے سے منٹس رہ گئے کلاس کے, تو آپ کو 9000 قرآن کے ورڈ جو ہیں اس پیٹرن پر آنے والے, ان کو یہاں سے ہیلپ مل جائے گی. تو آپ نے یہ خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں, اتنی بڑی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو آپ پوری توجہ سے آ جائیں اور میرے ساتھ پریکٹس کریں اشارے سے, رائٹ ہینڈ رائٹ سائڈ. اور آپ نے یاد رکھنا ہے آپ کا ہاتھ پیرالل ٹو دا گراؤنڈ ہو تو زیادہ اچھا ہے. میں آپ کو اسکرین پہ پوری نظر نہیں آ رہی, تو اس لیے میں نے ہاتھ تھوڑا اوپر رکھا ہے, ورنہ ایزی طریقے سے آپ شولڈر سے تھوڑا نیچے رکھیں اپنا ہاتھ, ایزی اس سائڈ پر, ٹھیک ہے. تو آپ کہیں گے فعلا, اس نے کیا, فعلو, ان سب نے کیا, فعلتا, آپ نے کیا, فعلتو, میں نے کیا, فعلتم, آپ سب نے کیا, فعلنا, ہم سب نے کیا یا ہم نے کیا. اور صرف عربی میں ٹیبل پڑھنا ہو تو کہیں گے فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا. آپ جلدی سے ہینڈ ریز کریں اور مجھے بتائیں کہ اس انٹرسٹنگ آسان سے ٹیبل کو, فعل ماضی کا پہلا ٹیبل کون سنا رہا ہے؟ عنایہ رحمان. عنایہ جلدی سے مائک آن کر لیں اپنا, تاکہ ہمارا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو. اور جی عنایہ, عنایہ ترجمے کے ساتھ سنائیں اور اشارے کے ساتھ. فعلا اس نے کیا, اس نے فعلو نہیں ہے, اس نے نہیں ہے, یہ اس نے ہے. کل بھی سر نے بتایا تھا, اس نے کیا. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. ماشاءاللہ, عنایہ نے بہت اچھے سے بتایا. مطہرہ ہمیں بتا رہی ہے, مطہرہ بطول یہی ٹیبل سنائے اور باقی لوگ بھی اپنی جگہ پر سنائیں گے. جی فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. ویری نائس. اب ہمیں ایک اور ہم سن لیتے ہیں حافظہ ہنا سے. حافظہ ہنا پلیز اپنا مائک آن کر لیں. حافظہ ہنا ہمیں صرف عربی میں سنائیں گی اور آپ نے اشارے ضرور کرنے. جی فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا. دیٹس رائٹ. اب ہم سب مل کر نا پریکٹس کر لیتے ہیں, لیکن آپ کی میں مائک ابھی آن نہیں کروا رہی, اینڈ میں آن کرواؤں گی. آپ جہاں بھی ہیں اچھے اسٹوڈینٹس کی طرح اونچی آواز میں پڑھیں. فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا. پھر سے پڑھیں میرے ساتھ ساتھ. فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا. اب یقین کریں جو میری بات مان کے پڑھ رہے ہیں اور اشارے بھی صحیح کر رہے ہیں, ان کو تو ابھی کے ابھی یاد ہو جائے گا, اور جو نہیں کر رہے نا ان کو پھر پرابلم ہو سکتی ہے, ان کو مشکل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا. اور فارمولا کیا تھا؟ فعلا, اس کے بعد او, تا, تو, تم, نا. اب یہی فارمولا لگا کر
हम अगर फ़अला की जगह कोई और लफ्ज लगाए ना तो हम वो भी टेबल बना सकते हैं, अभी हम बनाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ एक और हिंट दे देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे फेल माजी में सारे काम हो चुके होते हैं पहले से, तो आप उसके एक जहन में स्टोरी याद कर लें। जैसे आप कभी एयरपोर्ट गए हो, अपने किसी फ्रेंड को आपने सी ऑफ किया हो, वो किसी दूसरी कंट्री जा रहे हो, या मामा बाबा में से कोई हज या उमरा करने गए हो, तो आपने देखा होगा ना, आप तो एयरपोर्ट पर खड़े रह जाते हैं लेकिन प्लेन वहां से फ्लाई कर जाता है, उड़ जाता है। जब वो उड़ता है तो आपको उसके पीछे वाला हिस्सा नजर आता है, मुंह वाला, सामने वाला तो नहीं नजर आता ना, शुरू वाला, आखिरी हिस्सा पीछे वाला नजर आता है। तो इस वजह से आप देख रहे हैं जहाज उड़ गया, चला गया, काम हो गया, तो आपको उसका पिछला हिस्सा नजर आता है, आखिरी हिस्सा। इसी तरह माजी में भी जो फॉर्मूला आप लगा रहे हैं ना, ये ऊ, ता, तुम, तू, ना वाले जो अल्फाज आपने सीखे हैं, ये आप आखिर में ही लगाते हैं, शुरू में नहीं लगाते। जैसे फ़अला है तो हम इसके शुरू में फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम सारे आखिर में लगा रहे हैं, ये देखिए आप। तो बस ये एक आपने मिसाल याद रखनी है फेल माजी की, कि इसमें जहाज उड़ गया, काम हो गया, यानी फेल माजी में। तो अभी बोलचाल की प्रैक्टिस कौन करवाएंगे मेरे साथ? हनीन, मनीहा, अपना माइक ऑन कर लें जल्दी से। हनीन, मनीहा कहाँ है जी? आर यू एक्टिव इन द क्लास? तो जल्दी से माइक ऑन कर लें। हनीन नहीं है, चले तूबा, तूबा ने माइक ऑन कर लिया, फिर से ऑन करें तूबा जी। तो तूबा से अगर मैं सवाल करूं बोलचाल की, हम दोनों के दरमियान में बातें हो रही हैं, गुफ्तगू, और मैं तूबा से पूछ रही हूँ किसी का, जैसे किसने क्या काम किया, समझो कि कुरान का कोर्स किया, तो हम कहेंगे हल फ़अला, क्या उसने किया? तूबा क्या जवाब देंगी आप? नअम फ़अला। जी हाँ उसने किया, ठीक है, नाम का मतलब जी हाँ, फ़अला उसने किया। हल फ़अलू, क्या उन सब ने किया? नअम फ़अलू। तर्जुमा कीजिए। जी हाँ, जी उन सब ने किया। वेरी नाइस। हल फ़अलता, क्या आपने किया? नअम फ़अलतु। तर्जुमा। जी हम सब ने किया। हम सब ने नहीं, मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ। आप कहेंगे जी हाँ मैंने किया। फालतू, तू का मतलब होता है मैं अकेली, ज्यादा लोग नहीं, मैंने किया, ये मेल के नअम लिए वैसे। हल, ठीक है, हल फाल तुम, क्या आप सबने किया? नअम फ़अलना। जी मैंने किया। मैंने नहीं, हमने। बहुत गौर से देखें, ये जो, हाँ ये मैं आपको टेबल दिखा देती हूँ। तू का मतलब मैंने किया और ना का मतलब हमने किया, तो आपने ये याद रखना है। एक दफा और प्रैक्टिस करनी है। माशाल्लाह आप बहुत अच्छा सुना रही हैं। अच्छा, अब हमने समझ लिया सब कुछ, अब हमारी सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस बैठी है। समझ तो हमने सब लिया है ना। तो हमने अभी जिस टेबल की प्रैक्टिस की है वो क्या है? ये वाला है, फ़अला, उसने किया, उन सबने किया, आपने किया, मैंने किया, आप सबने किया, हमने किया। अब आपको पता है इसके दो और फ्रेंड्स भी हैं, यानी ये एक ग्रुप है। जैसे हम स्कूल में सब फ्रेंड्स होते हैं, सबको फ्रेंड बनाना चाहिए, लेकिन ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स के ग्रुप्स होते हैं ना, कि ये 3-4 फ्रेंड्स हैं, ये 2 फ्रेंड्स हैं, ये 5 फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ जो है ना, ये ग्रुप है, आप इसका शॉर्ट नेम याद कर लें, फा, क्योंकि फ़अला, फ़तह, फा से बन रहा है, ठीक है। तो ये जो फ़अला आपने पढ़ा ना, इसके 2 और फ्रेंड्स भी हैं, आप देख लें, फ़तह भी है, जअला भी है। तो इसका मतलब है इनके टेबल भी सेम बनेंगे, क्योंकि 3 फ्रेंड्स हैं, एक जैसे होंगे, हम उनकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। फ़अला का मीनिंग हमने पढ़ा, उसने किया कोई भी अच्छा काम। फ़तह का मतलब उसने खोला, जैसे कहते हैं उसने दरवाजा खोला, उसने अपने जहन को खोला पढ़ने के लिए, है ना। जाला का मतलब है उसने बनाया। अब हमने फ़अला पढ़ लिया, तो हम देखते हैं अगला टेबल कौन सा है, जाला। अब यहाँ देखें, फा आइन लाम, और यहाँ पे है जीम आइन लाम, सिर्फ फा की जगह जीम आ रहा है, बाकी तो सेम है। अब इसके आगे अगर हम वही फॉर्मूला लगाएं, फ़अला के बाद ऊ, ता, तू, तुम, ना, तो यहाँ पर अगर हम जीम लगा दें तो ये वाला टेबल बन जाता है। दिस इज वेरी इजी। अब तो इतना मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि मुझे प्रैक्टिस की करवाने की जरूरत ही नहीं है। आप में से कोई प्रैक्टिस करवाएगा? ऐसा करते हैं, मिसबा असलम अपना माइक ऑन करें जरा जल्दी से। मिसबा जी, ये टेबल सुनाए, तर्जमा भी सुनाए, इशारे भी करें जी। मिसबा असलम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मिसबा असलम, चले हम किसी और से सुन लेते हैं, मे भी कुछ प्रॉब्लम होगी। उमर, हफ्सा, अरवा, अपना माइक ऑन कर लें, सुनाइए। उसने बनाया। जालू उन सब ने बनाया। जालता आपने बनाया। जालतु मैंने बनाया। जालतुम आप सब ने बनाया। जालना हम सब ने बनाया। वेरी नाइस,
बहुत ही अच्छा। और यही टेबल अगर हमने अरबी में पढ़ना हो हम कहेंगे, सब मेरे साथ पढ़ें, माइक ऑन नहीं करना है लेकिन सब पढ़ें। जाला जालू, जालता जालतू, जालतुम जालना। उसने बनाया, उन सब ने बनाया, आपने बनाया, मैंने बनाया, आप सब ने बनाया, हम सब ने बनाया। ठीक है, कितना आसान है। इसी तरह जो इनका तीसरा फ्रेंड है यानी फतहा, उसका मतलब है उसने खोला, हम उसका फेल माजी टेबल पढ़ लेते हैं। और ये मैं नहीं पढ़ूंगी, ये हम मनिया अदिल से सुनते हैं। मनिया अदिल माइक ऑन कर। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तर्जुमा भी सुनाएंगी और इशारे भी करेंगी जी। ओके। फताहा इसने खोला, फताहो इन सब ने खोला, मनिया फताहा एक मिनट आप मेरी बात सब सुने। ने, आपने ये आपने ध्यान रखना है कि इसने और इन सब ने नहीं कहना, उसने उन सब ने कहना है। फिर से बोलें। ओके। फताहा उसने खोला, फताहो इन सब ने, उन सब ने उन खोला, सब ने खोला। फताहत उन सब ने खोला, फताहत आपने नहीं, ये खोला, फताहत नहीं है, फताह ये फताहत नहीं है, ये है फताहता ओके। जी। फताहत आपने खोला, फताहता, फताहतु फिर से बोलें। फताहत नहीं नहीं, मेरी बात जरा गौर से सुने। आपने खोला, ये क्या है मनिया, मेरी बात गौर से सुने। ये है फताहता, आप बोलें। फताहत नहीं नहीं, फताहता। फताहत इसकी प्रैक्टिस आपने मजीद करनी है। आपने मुझसे मैसेज पे बात करनी है, अभी आप ठीक नहीं बोल रहे हो। चलिए कैरी ऑन, कैरी ऑन। फताहत आपने खोला, फताहतु मैंने खोला, फताहतुम आप सब ने खोला, फताहतना हम सब ने खोला। बहुत अच्छी कोशिश की है मनिया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, लेकिन आपको बहुत परफेक्शन की जरूरत है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कुरान के जो तिलावत है और जो नूरानी कायदा है ना, आप उसको भी रिपीट करें। अभी आपकी छुट्टियां चल रही हैं क्योंकि स्कूल से आपको ऑफ है, वेकेशन है, तो ये वर्ड्स जो है ना इनको सही प्रोनाउंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, माशाल्लाह आपने प्रैक्टिस कर ली है। मैं आपको एक दफा सबको प्रैक्टिस करवा देती हूँ। फतहा, फतहू, फतहता, फतहतु, फतहतुम, फतहना, फतहा, फतहू, फतहता, फतहतु, फतहतुम, फतहना। ठीक है, आप सब प्रैक्टिस इसकी जारी रखें। और इनकी बोलचाल के लिए अब मैं देखती हूँ यहाँ पर, आई जस्ट वांट टू सी कि जो लोग ज्यादा हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं लेकिन वो नजर नहीं आ रहे हैं। आप लोगों ने हैंड रेज किए होते हैं तो हम कुछ नए लोगों को मौका देते हैं। अस्मा रहमान, आप अपना माइक ऑन कर लें। अस्मा रहमान, आर यू देयर? जी जी मैम। मैं आपसे सवाल करती हूँ, आपने इशारे के साथ जवाब भी देना है। हल जाला, क्या उसने बनाया? नअम जाला, जी हाँ उसने बनाया। हल जालू, क्या उन सब ने बनाया? नअम जालू, जी हाँ उन सब ने बनाया। हल जालता, क्या आपने बनाया? नअम जालतू, जी मैंने बनाया। हल जालतुम, क्या आप सब ने बनाया? नअम जालना, जी हम सब ने बनाया। वेरी नाइस, माशाल्लाह। देखिए अस्मा ने कितने क्लियर वर्ड्स में सवालात के जवाब दिए। अब ऐसा करते हैं, हम शाजिया तारिक से रिक्वेस्ट करेंगे। शाजिया तारिक, आप माइक ऑन कर लें जल्दी से। शाजिया तारिक, आर यू लिसनिंग? जी 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 जी। मैं आपसे सवाल करती हूँ, आप जवाब दीजिए। हल फतहा, क्या उसने खोला? नअम फतहा, जी हाँ उसने खोला। तर्जमा भी कीजिए। हल फतहू, हाँ क्या उन जी। सब ने खोला? नअम फतहू, जी जी हाँ उन सब ने खोला। हल फतहता, क्या आपने खोला? नअम फतहतु, जी हाँ हम सब ने खोला। जी हाँ मैंने खोला। मैं तो सिर्फ आपसे जी पूछ हाँ रही हूँ ना मैंने, अभी। हाँ जी हाँ मैंने हाँ, ये खोला सिंगल जी। के सिंगल शख्स के लिए जी है, मुजक्कर के जी। लिए। हल फतहतुम, क्या आप सब ने खोला? नअम फतहना, जी हाँ हम सब ने खोला। दैट्स राइट, माशाल्लाह। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि सब इतनी तवज्जो से सुन रहे हैं। आज के जो 3 फ्रेंड्स टेबल्स थे ना, आपने इतनी प्रैक्टिस करनी है। और अगर दो लोग एक घर से, बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, बहन भाई मिलकर पढ़ रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ मिलकर बोलचाल वाली प्रैक्टिस भी करनी है। स्लाइड्स तो मैं अभी आपको भेज दूंगी, ठीक है? तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप समझ जाएंगे। चैप्टर एंडिंग टाइम हो गया है, चैप्टर हमारा एंड हो चुका है। और आखिर में हम नुक्ता तालीम के साथ एक नुक्ते पे बात करते हैं जो हमें बहुत ही
फायदा मंद होता है हमारे लिए। तो क्या है यहाँ पर, हजरत अब्दुल्ला बिन बुस्र रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, इस्लाम के अहकाम तो मेरे लिए बहुत हैं, आप मुझे कोई ऐसी बात बताएं जिसको मैं मजबूती से पकड़ लूं, उस पर बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया कि तेरी जुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहनी चाहिए, यानी हर वक्त अपनी जुबान पर अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र जारी रखो, इसका ये मतलब है। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है ये। आपको याद है कल के सबक में हमने ये बात सीखी थी कि तिलावत जो है ना वो जरूरी है, और फिर हमने ये भी बात की थी कि कम से कम 5 मिनट तिलावत तो हर हाल में करनी है हमें जरूर, ताकि हमारी आदत हो। इंशाल्लाह फिर हम वक्त बढ़ा भी देंगे, समझ के तसल्ली से हम ठहर ठहर कर कुरान को पढ़ लेंगे। आज हम यही बात करें कि हाफिजे से पढ़ना, यानी जहन में जुबानी पढ़ना, उसकी भी आदत बनानी है हमें, ठीक है। और बहुत सारी सूरतें कुरान की माशाल्लाह हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने हमें याद भी करवाई हैं, और भी चीजें जो हमारे लिए मुमकिन हो आहिस्ता आहिस्ता हमें ज्यादा से ज्यादा याद करनी चाहिए, ये भी है ना। और एक बात इंपॉर्टेंट क्या है, वो ये कि हम अक्सर ऐसा होता है जब हम बस दिल में कहते हैं ना कुछ, हम दिल में तिलावत कर रहे हैं, तो हमारा जहन कहीं और चला जाता है और हमें पता ही नहीं चलता, हम भूल चुके होते हैं कि हमने कोई तिलावत भी करनी है ना। यहाँ पर क्या है, ये ट्रिक बताई जा रही है कि आप जब भी तिलावत करें, अफजल है कि आप अदा करें जुबान से, सिर्फ दिल में नहीं, जुबान से। अगर बहुत आवाज बुलंद नहीं पढ़ना, हो सकता है आपकी ऊंचा पढ़ने से कोई डिस्टर्ब हो रहा हो घर में, कोई मरीज भी होता है ना, तो बहुत बुलंद ना पढ़े, आप धीमी आवाज में पढ़े, लेकिन एटलीस्ट आपके अपने कान उसको सुन रहे हैं ना, तो आप एक्टिव भी रहते हैं, ज्यादा तवज्जो से आपको जिक्र करते हैं। और एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, घर पर हैं, और आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं माशाल्लाह अपने दिल में, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है और ऐसा करना भी चाहिए। सामने से कोई बहुत ही स्पेशल बड़ी गाड़ी गुजरती है जो आपकी फेवरेट है, आपको पसंद है ना, न्यू मॉडल है उसका, तो आपका पूरा फोकस तो वहां चला जाएगा। अब अगर आप अल्लाह का जिक्र कर रहे थे या तिलावत कर रहे थे, आपके दिल में अगर आप कर रहे थे, तो हो सकता है आपको फौरन से आपके जहन में वापस ना आए कि आप तिलावत कर रहे थे। लेकिन अगर आप थोड़ी आवाज से तिलावत कर रहे होंगे ना, तो आपको थोड़ी देर में अंदाजा हो जाएगा कि अभी कुछ ऐसा है जो नहीं हो रहा, यानी आप थोड़ी देर पहले ऊंचा ऊंचा तिलावत कर रहे थे, अल्लाह को याद कर रहे थे, अब आप नहीं कर रहे। इस तरह से आप फौरन से दोबारा याद करके तिलावत शुरू कर देंगे। तो आवाज से तिलावत करने का ये बहुत बड़ा फायदा है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम इस बात को इंशाल्लाह ज़हन में रखेंगे, और इस बात पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह का जिक्र हमें करना है, और जुबान अल्लाह ने ऐसी बनाई है जो कभी थकती नहीं। अब जब हम मुसलसल कुछ देर पढ़ते हैं, कुछ पढ़ाते हैं, सुनते हैं, तो हमारा गला थक जाता है, हम कहते हैं गले में पेन हो रहा है ना। ये तो नहीं कहते जुबान थक गई, ये जुबान में दर्द हो रहा है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह का कितना करम है हम पर कि अल्लाह ताला ने हमें इस तरह का बनाया है, इतनी ऐसी 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 काबिलियत और खूबियां दी हैं, है ना। तो उनको हमें अल्लाह के कामों में इस्तेमाल करना चाहिए। सुभान अल्लाह। तो हमने अपनी आदत बनानी है कम से कम 5 मिनट की मेमोरी से याद करने की। अल्हम्दुलिल्लाह, सबक नंबर 9 मुकम्मल हो गया हमारा, और आज हमने चैप्टर 1 से 9 तक 102 अल्फाज तकरीबन सीख लिए हैं, जो कुरान में 27,000 से भी ज्यादा बार आए। सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी बात है। जरा जल्दी से माइक ऑन करके अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। आपके माइक मैं भी यहाँ से ऑन कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 माशाल्लाह। तो देखिए हमारे दिमाग की जो बैटरी है ना, ईमान वाली, वो इतनी फिल हो चुकी है। इंशाल्लाह जब पूरे 78,000 वर्ड्स हमें आ जाएंगे, तो फिर तो हम बहुत ही अच्छे से सब समझ चुके होंगे, तो हमारे लिए अमल करना भी आसान होगा, ठीक है। और अभी हम आगे चलते हैं, और चैप्टर हमारा मुकम्मल हो चुके हैं। अल्लाह ताला से का शुक्र करते रहें और दुआ भी करते रहें, रब किसी के हमारे इसमें इजाफा फरमा, ठीक है। और हमने इस सफर को जारी भी रखना है, मैम अल्लाह और अल्लाह ताला जज़ाकल्लाह। दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। उम्मीद है कि दुआ आपने भी मेरे साथ पढ़ी होगी। अपनी नमाज की अदायगी को कभी नहीं भूलना। 5 वक्त की नमाज आपने पक्की वाली आदत बना लेनी है कि अब के बाद तो कभी नहीं भूलना, और समझ के पढ़नी है, क्योंकि अब तो आपको नमाज के तकरीबन मैक्सिमम हिस्से समझ आ गए। अब तसल्ली से समझ के, फील करके और मोहब्बत से पढ़ना, ठीक है इंशाल्लाह। और तिलावत रोज 5 मिनट और 5 मिनट जुबानी
अपने हाफिज़ कुरान को पढ़ने को जारी रखें। अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि Excuse me, ma'am.